Hello, here is complete solution for class 5, subject EVS, chapter number 14, friction. Rub both your palm together. Now apply a few drops of oil on your palm and rub them. In both the conditions, what difference did you feel on rubbing your palms? So, on rubbing our hands without oil, more power is needed and heat is generated. हाथ गर्म हो जाता है ना, बिना ऑयल के. Whereas after applying oil, less power is needed and heat is also not generated. उतनी ताकत नहीं लगती है, फ्रिक्शन आ जाता है, ईजिली हाथ मूव हो जाता है और हाथ गर्म भी नहीं होता उतना जल्दी जितना जल्दी विदाउट ऑयल हो रहा था. What may be the reason? Oil drops reduces friction, है ना, ये है reason. Friction generates heat when two surfaces rub each other. This prevents the things from slipping and rolling. Let's experiment. Experiment 1. As shown in the picture, keep the book in a sloping position on a plane surface and roll a marble on it. Now spread a rug on the plane surface and roll the marble again. तो एक्सपेरिमेंट के लिए कह रहा है कि एज वी कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है, ऐसे बुक को रखना है और मार्बल छोड़ना है. डिफरेंस ये करना है कि पहला एक्टिविटी हमको प्लेन सरफेस पे करना है और दूसरा हमको थोड़ा सा रफ, है ना, रग्ड या फिर रफ खुरदुरी ज़मीन पर करना है. ये दोनों एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो जब हम प्लेन सरफेस में करेंगे तो मार्बल दूर तक जाएगा. वेयर एज जो सेकेंड वाला है, जहाँ पे सरफेस क्या है, रफ है, खुरदुरा है, वहाँ पे मार्बल दूर तक नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है रोलिंग को, स्लिपिंग को, और एनर्जी भी रिक्वायर करता है. In which condition would the marble cover more distance? Answer: on smooth or plain surface, the marble will cover more distance. In which condition would the marble not go far? On rugged or rough surface, the marble will not go so far. वो दूर तक नहीं जाएगा. Out of the two surfaces, which surface was able to produce more friction? So answer: out of the two, rugged surface was able to produce more friction. Experiment 2. This time, roll the marble from different heights. Observe the effect on its movement. तो एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि जैसा अभी हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया था, एज इट इज़ सेम पूरा सेटअप रहेगा. उसी सेटअप पे आपको बुक की अलग अलग हाइट से मार्बल क्या करना है, रोल करना है. हमें यहाँ पे बच्चों को हाइट का भी क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी फोर्स पर, ये भी समझाना है. तो बुक के अलग अलग हाइट से मार्बल को रोल करिए. 2-3 मार्बल ले लीजिए और सभी मार्बल कितने दूर तक जाते हैं उसकी पोजीशंस रिकॉर्ड करेंगे. चेंज द लेवल ऑफ द स्लैंट ऑफ द बुक. होल्ड वन एंड ऑफ द बुक विथ योर हैंड एंड द अदर शुड टच द फ्लोर. नाउ रोल द मार्बल फ्रॉम द एंड which is high to the plain floor. Mark with a chalk the place where the marble reaches. Conduct the same experiment by changing the slope of the book each time. तो बुक के अलग अलग लेवल हाइट से, स्लोप से हमें ये कंडक्ट करना है. The marble rolled at what height covers the longest distance? The marble covers the longest distance when rolled from upper position of the book. जो ऊपर से मार्बल हम नीचे स्लाइड करते हैं वो सबसे ज़्यादा दूर तक जाएगा. नेक्स्ट, द मार्बल रोल्ड एट व्हाट हाइट कवर्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. द मार्बल कवर्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हेन रोल्ड फ्रॉम लेस हाइट. जो सबसे नीचे से हमने जिस मार्बल को स्लिप किया था वो सबसे पास में ही आके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया. Is there a relation between the slope of the book and the distance covered by the marble? Answer is yes. When marble is rolled from height, it covers long distance, whereas covers short या less distance when rolled from less height. Experiment 3. Take a book.
keep it on the floor and push it with your finger. Now keep 3-4 more pencils under the book in a vertical position. Now push them. ओके तो जब हम अपने फिंगर से करेंगे तो वी आर अनेबल टू पुश, बट वहीं पे हम 3-4 पेंसिल्स रख लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर 4-5 बुक्स भी रख लेंगे. हल्का सा हमें स्लाइड करना है. इट विल वर्क लाइक अ टॉय कार. कैसे टॉय कार होता है, हम थोड़ा सा धक्का मारते तो बहुत आगे तक जाता है. बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट है. जैसे ही आप इसे हल्का सा पुश करेंगे वो आपकी एनर्जी, आपने जितना फोर्स लगाया है उससे ज़्यादा आगे जाएगा. इज लेस effort required to push the book? Yes, less effort is required to push the book. है ना, efforts क्या हो गए, कम हो गए. हल्का सा पुश करेंगे ज़्यादा जाएगा, हल्का सा पुश करेंगे वो ज़्यादा आगे जाएगा. बट बिना पेंसिल्स, अगर पेंसिल्स नीचे से निकाल दें तो हमें बहुत ताकत लगेगी वो कुछ बुक्स या फिर उस एक बुक को भी आगे सरकाने के लिए. नेक्स्ट वन, what do you feel is the reason behind it? Answer, the friction between floor and the book is reduced by the pencils. Experiment 4. Whenever Neelam opens the door of her house, she has to exert a lot of effort and the door opens with a creak. Creak वाली sound होती है चर्र करके. Neelam's mother asked her to put oil in the latches of the door. Neelam did what her mother was told. The problem solved. On opening the door, why did it produce a sound? On opening, the door makes sound due to jam in hinge. Hinge बोलो, latches बोल दो. ओके, तो साउंड करता है. हम मूवीज़ देखते हैं, अधिकतर जो भूत वाली मूवीज़ होती है उसी में जब से दरवाज़ा खुलता है तो क्रीक वाली साउंड आती है. दरवाज़ा खुलता है तो आवाज़ आती है. ऐसा इसलिए दिखाते हैं कि ये बंद पड़ा था, इसमें कोई सफाई नहीं किया, इसकी कोई देखभाल नहीं किया इस बिल्डिंग की, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, ये आवाज़ आ रही है. ठीक है, इसलिए ऐसी मूवीज़ में ही दिखाते हैं कि इनकी दरवाजे क्या शोर करती है. इसीलिए शोर करती है क्योंकि पड़े पड़े जैम हो गया, पड़े पड़े जैम हो गया. बट जैसे हम ऑयल डालते हैं, हम अपनी साइकिल में ऑयल अप्लाई करते हैं, है ना बच्चों, तो उससे क्या होता है, उसका जो जाम होता है वो फ्री हो जाता है. ठीक है, और वो बिना एक्स्ट्रा मेहनत के बहुत फ्रीली चलने लगता है और शोर भी नहीं करता. आफ्टर ऑयलिंग, वाई कुड द डोर बी ओपन ईजली विदाउट एनी नॉइज? आंसर, द डोर डजेंट मेक साउंड बिकॉज आफ्टर ऑयलिंग द हिंज गेट्स फ्री. नेक्स्ट, वाई आर द पार्ट्स ऑफ साइकिल ऑयल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स? आंसर, द पार्ट्स ऑफ द साइकिल ऑयल्ड at regular intervals to reduce friction. है ना, अगर नहीं करेंगे तो हमें ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, शोर अलग करेगा, चिड़ 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 वाली आवाज़ करेगा साइकिल. ठीक है, पार्ट्स ख़राब भी हो जाते हैं ऐसे ही चलाने से, उसमें और कचरा बैठने लगेगा. ऑयलिंग करने से क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, फिर हमें उतने एफर्ट्स, पेडल उतनी ज़ोर से ताकत से नहीं लगाना पड़ता. थिंक एंड टेल, on which rolling pan can you roll a chapati easily? A smooth wooden one or a rough wooden one? So on a smooth wooden one. हम सबके घर में चपाती पैन है जिसमें हम चपाती रोल करते हैं, तो वो कौन सा है, स्मूथ वाला होता है. On which grinding stone would you be able to grind spices and chutney better? तो हम चटनी और मसाले किस पे बेहतर पीस सकते हैं, ऑन रफ स्टोन. हम सभी के घर में सील है, और अगर सील अगर आप छूने में आपको नहीं लग रहा तो आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें हल्का हल्का करके ऐसे लाइंस बना दी गई है. ठीक है, उसको गड्ढा गुड्ढी करके बनाया गया, रफ़ बनाया गया, पूरा चिकना चिकना नहीं बनाया गया. ऑन रफ अनइवन ग्राइंडिंग स्टोन वी कैन ग्राइंड स्पाइसेस एंड चटनी बेटर. ऑन व्हाट काइंड ऑफ सरफेस कैन वी वॉक ईजली? We can walk easily on even, plain and frictional surface. हम स्मूथ सरफेस पे आराम से नहीं चल सकते, उसमें हम बार बार स्लिप होंगे. और बहुत ज़्यादा अगर रफ़ सरफेस होगा तो हमें वहाँ पे चलने में बहुत मेहनत लगेगी. तो हम नॉर्मल, इवन है रास्ता, प्लेन है, फ्रिक्शनल टाइप का सरफेस है, मिक्स्ड जैसे हमारे रोड्स हैं,
है ना। रोड्स कैसे बने हैं, वो फ्रिक्शनल है, फ्रिक्शंस को ध्यान पे रख के बनाया गया सरफेस है, ना ही बहुत चिकना है ना ही बहुत ज़्यादा खुरदुरा है। रीड द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कंडीशन फर्स्ट, वॉकिंग ऑन सैंड, तो फ्रिक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनत लगती है, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग। सेकेंड, स्टेपिंग ऑन द पील ऑफ बनाना वाइल वॉकिंग, केले के छिलके पे खड़े हो जाना, तो फ्रिक्शन क्या है, बिल्कुल नहीं है, बिना मेहनत के हम धम से गिर जाएंगे, ओके, तो स्लिप। थर्ड, वॉकिंग ऑन अ रोड, तो रोड क्या है, एप्रोप्रिएट फ्रिक्शन है, एप्रोप्रिएट फ्रिक्शनल है, फ्रिक्शनल सरफेस उसको बनाया गया है जिस पे हम ईजिली वॉक कर सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा या बहुत कम मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रपोर्शन में हम वहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं और आराम से चलते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ सरफेस विथ नो फ्रिक्शन, व्हाट विल हैपन देयर, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा हम तो स्लिप होते जाएंगे, है ना। On surface with no friction, we cannot walk easily and there will be more chance to slip. What have we learned? Oral question. First one, what are the conditions that cause friction? Answer, smooth surface or rough surface. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, smooth or rough surface and height are the conditions that cause friction. Second question, why is there a risk of slipping on a smooth surface? Answer, due to very less friction, there is a risk of slipping on a smooth surface. Written question. First one, why are the board of a flour mill stitched? Answer, the board of a flour mill is stitched to increase the friction between these boards and the grain is grinded properly. Question number 2, how does friction help in walking and running? Answer, friction between ground and feet acts in the direction of our movement and prevent us from slipping. Hence, we can walk and run easily on a surface with appropriate friction. Third question, why do the cycles slip on applying brakes on a wet street during rains? साइकिल में जब हम ब्रेक दबाते हैं और रोड गीली हो, ओके, वेट स्ट्रीट, रोड गीली हो, तब साइकिल स्लिप क्यों होता है? आंसर, when there is no appropriate friction between cycle's wheel and road, the cycle slips. The same situation occurs when there is sand on road. तब भी ऐसे ही होता है ना, कि साइकिल क्या हो जाती है, गाड़ी स्लिप हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, why do the parts of machines regularly oiled greased? Answer, the parts of machines are regularly oiled greased because oiling helps in reducing friction between parts of machine and machine starts easily.